Good morning, students. Now, in continuation with the same topic, that is lines and angles, I am moving one more step, and today I am going to teach you how to find or what is the angle sum property of a triangle and exterior angle property of the triangle. On the basis of the both, you will be able to find the proofs and solution of the concerned topic. So, first of all, I am going to prove that sum of interior angles of a triangle equals to 180 degree. First, let me write the statement of the same. You see, a statement. Prove that sum of the interior angles of a triangle is 180 degree. I have written here the statement. Sum of all the interior angles of a triangle. You must use the word that is interior angles of a triangle is 180 degree. Now, this is a statement. Now, given ABC is a triangle, to prove angle A plus angle B plus angle C equals to 180 degree. Given ABC is a triangle, to prove angle A, angle B plus angle C equal to 180 degree. If we have to go for any construction, we go for the same here. Once again, I am doing for a construction here. Now, construction. What I have constructed is that I have drawn PQ parallel BC. So let me write here. Draw PQ parallel BC. This is construction. Now proof. We name it angle A. Is name it as angle 1, this is angle 2, this is angle 3, this is angle 4, this is angle 5. I have clearly mentioned, I have taken angle A as angle 1, angle B as angle 2, and angle C as angle 3, angle PAB as angle 4, and QAC as angle 5. I have taken this. Now, proof. Since PAQ parallel BC by construction, so angle 4 equal to angle 2. ये 4 2 के बराबर अल्टरनेट एंगल लिखते हैं, अल्टरनेट एंगल्स. अब देखो उसी तरह से एंगल 5 एंगल 3 के बराबर है, यहाँ हम लोग लिखते हैं सिमिलरली एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट एंगल्स. अल्टरनेट एंगल्स में हम पढ़ाए हैं कि जब दो पैरेलल लाइन वेव ट्रांसवर्सल करती है, तो जब पैरेलल लाइन होगी तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा. तो चूंकि PAQ BC के पैरेलल है, इसलिए एंगल 5 एंगल 3 के बराबर, एंगल 4 एंगल 4 के बराबर होगा. इसको अल्टरनेट एंगल कहते हैं. अब जब
फिर लीनियर पेयर तुमको पढ़ा। यहाँ देखो, इसको हम यदि इस तरह से मार्क करते हैं तो देखो ये स्ट्रेट लाइन, ये तुम्हारा क्या हुआ, पी ए क्यू मेरा स्ट्रेट लाइन हुआ। स्ट्रेट लाइन के एक पॉइंट ए पर 3 एंगल बनते हैं। तो स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था कि कोई भी स्ट्रेट लाइन होगा उसके एक पॉइंट पर एक तरफ यदि 2 एंगल बनते हैं तो उनका भी सम 180 होता है, और 2 से ज़्यादा बनता है तभी उसका वैल्यू 180 होता है। तो 2 अगर एंगल बनेंगे तो वहाँ हम प्रॉपर्टी में लिखेंगे लीनियर पेयर, और 2 से ज़्यादा बनेंगे तो वहाँ स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी, लेकिन सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री होगा। अब देखो, सिंस PAQ is a straight line, this implies as, so not this implies as, so angle 4 plus angle 1 plus angle 5 equal to 180 degree। यहाँ लिखेंगे straight line property, लिख दिया। अब देखो, 4 मेरा किसके बराबर है, 2 के बराबर, 5 किसके बराबर है, एंगल 1 के जगह पर एंगल 1 लिखे, एंगल 2 लिखे और एंगल 3 लिखे, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 देखो मेरा ए है, ए, एंगल बी और एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव्ड। तो कभी कहेंगे तो कहेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल विल ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो इसका दूसरा प्रूफ बनाने जा रहे हैं। देखो, दूसरा प्रूफ है कि इफ one side of a triangle is produced or any side of a triangle is produced, the exterior angle so formed always equals to its opposite interior angle। यानी कि यदि ट्रायंगल के किसी एक साइड को हम बढ़ाते हैं तो जो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मेशन होता है वह इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो देखो हम लिख देते हैं स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ a side of a triangle is produced, the exterior angle so formed always equals to its opposite, always equals to sum of its opposite इंटीरियर एंगल्स। देखो इसको समझ जाना, इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, किसी ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, किसी एक साइड को यदि हम बढ़ाते हैं तो एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मेशन होता है वो हमेशा इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में जो 2 एंगल्स रहते हैं उन दोनों के सम के इक्वल होगा। अब देखो इस पर पहले हम इसका लो डायग्राम खींचते हैं। देखो ABC ट्रायंगल है, किसी साइड को तुम बढ़ा सकते हो, तो हम BC को बढ़ा रहे हैं। BC को हमने बढ़ाया तो पहले लिखेंगे स्टेटमेंट हो गया, लिखते हैं गिवन
ABC is a triangle whose side, देखो BC को पढ़ा है, whose side BC has been produced up to D। अब देखो D तक पढ़ा, तो यह जो एक्सटीरियर एंगल बना वो ये बना, ये देखो ये एक्सटीरियर एंगल बना, ये एक्सटीरियर एंगल बना, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। अब इसको तुम ढक लो, अब तुमको क्या एंगल ए और एंगल बी, यानी ये जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो एंगल ए और एंगल बी के सम के बराबर होगा। तो इसको हम देखो इसके नाम, इसको नेमिंग किया 1 से, इसको 2 से, इसको 3 से। टू प्रूव, देखो क्या साबित करना है, टू प्रूव एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल BAC प्लस एंगल ABC। इसी को यदि हम करते हैं तो देखो ACD तुम्हारा क्या है, एंगल 3, BAC तुम्हारा क्या है, एंगल 1, और ABC क्या है, एंगल 2। यही हमको प्रूफ करना है, गौर से ये हमको प्रूफ करना है, एंगल 3, एंगल 2 और तो किसी भी साइड को यदि बढ़ाओगे तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो इसके दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम पे इक्वल होगा। तो अब प्रूफ अब इसको हमने 4 लिया। अब देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। यह तुमको हो गया लीनियर पेयर से, लिखेंगे बाय लीनियर पेयर। इसको इक्वेशन 1 लिया। फिर देखो ट्रायंगल ABC में 1 2 3 एंगल 1 2 3 इन ट्रायंगल ABC एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। इसको लिखेंगे एंगल्स फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसको हमने दो नाम इक्वेशन 2 दे दिया। देखो 3 और 4 लीनियर पेयर से हो गया। और यह चूंकि मेरा ट्रायंगल है बीसी, तो तीनों अभी इसके पहले जो ऊपर है तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो उससे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 मेरा 180 डिग्री हो गया। दोनों इक्वेशन में देखो RHS इक्वल है 180 180। जब किसी दो इक्वेशन में RHS इक्वल होते हैं तो LHS इक्वल होते हैं, तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2। फिर देखो इस चीज को ध्यान में रखना कि कोई दो इक्वेशन होगा उसमें यदि दोनों के RHS मिलेंगे तो दोनों के LHS मिलेंगे, और यदि दोनों के LHS मिलेंगे तो दोनों के RHS मिलेंगे। तो देखो दोनों का RHS मिल गया तो दोनों का LHS मिला। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। देखो 3 कैंसिल आउट हो गया। दिस इम्प्लाइज एज एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो गया। इस दोनों थ्योरम को खूब अच्छे ढंग से प्रूव करो और इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है सवाल है उसको बनाओ। फिर नेक्स्ट क्लास में तुमको हम बताएंगे। टिल देन गुड बाय।